Students, we need to think about what we are learning and how deep it is. It should be ascertain how much knowledge the teacher has. If the teacher answer your questions while teaching, they are truly knowledgeable teachers. If the teachers are angry at the questions asked, then it proves that they have little knowledge. A wise teacher is never angry. The teacher's job is to answer the students' questions and satisfy them. Some teachers explain somehow the lesson and poem into Marathi or Hindi and order the student to write questions and answer. They are not a real teacher. I still don't know why the student afraid to ask questions to their teachers. If students ask a question to the teacher will come to study and impart the best quality knowledge to the students. So, today let's learn the portion which is not taught by anyone. We have to learn used to with bare and zero infinitive. We have to learn used to with bare and zero infinitive. What is the meaning of bare or zero infinitive? Bare or zero infinitive is a verb which is used after can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, dare and need. What is the definition of bare and zero infinitive? Bare or zero infinitive? A verb which is used after can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used to, ought to, dare and need. My today's rule is bare or zero infinitive is used after used to shows. Bare or zero infinitive is used after used to shows habit in the past but no anymore. Habit in the past but no anymore. It is equivalent to did. Used to is equivalent to did. What is the rule? Bare or zero infinitive is used after used to shows habit in the past but no anymore. यानी क्या होता है? भूतकाल में आदत थी लेकिन अब नहीं है. भूतकाल में आदत थी लेकिन अभी नहीं है. यह बताने के लिए used to के बाद bare और zero infinitive का हम इस्तेमाल करते हैं. Bare or zero infinitive is used after used to shows habit in the past, but did not know anymore. Bare or zero infinitive is used after used to shows habit in the past, but no anymore. Used to is equivalent to did. फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देंगे कि भूतकाल की आदतें थी लेकिन अभी नहीं है. यह बताने के लिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई ड्रिंक टी. आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई ड्रिंक टी. आई सिप टी. यानी क्या होता है? मैं रोज सुबह कॉफी पीता था लेकिन अब चाय पीता हूं. मैं रोज सुबह कॉफी पीता था लेकिन अब चाय पीता हूं. सेकंड एग्जांपल लेंगे. यानी पहले की आदत हमने बता दी कि कॉफी छोड़ दी, अब क्या पी रहा हूं? चाय. सेकंड एग्जांपल लेंगे. सी यूज्ड टू लिव इन लंदन. सी used to live in London but now she lives in New York. She used to live in London but now she lives in New York. यानी क्या होता है? वह लंदन में रहती थी लेकिन अब वह न्यूयॉर्क में रहती है. वह लंदन में रहती थी लेकिन अब वह
न्यूयॉर्क में रहती है, यानी लंदन छोड़ दिया, अभी वहां पे नहीं है, न्यूयॉर्क में है। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, he used to play football, he used to play football professionally but he had to quit because of an injury. He used to play football professionally but he had to quit because of injury. यानी क्या होता है, वह व्यावसायिक रूप से फुटबॉल खेलते थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। वह व्यावसायिक रूप से फुटबॉल खेलते थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा, फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। फोर्थ नंबर का एग्जांपल लेंगे, we used to go sailing on the lake in summer. We used to go sailing on the lake in summer. यानी हम गर्मियों में झील पर जल यात्रा के लिए जाते थे। हम गर्मियों में झील पर जल यात्रा के लिए जाते थे। पांचवा एग्जांपल लेंगे, फिफ्थ नंबर का एग्जांपल, You used to see a lot of her. He used to see a lot of her. यानी क्या होता है, आप उसे बहुत देखा करते थे, आप उसे बहुत देखा करते थे। 5 एग्जाम्पल मैंने ये दिया है यूज टू के, इसे क्लियर होते होंगे, यूज टू का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब लेना है। नाउ we have to learn some important verb to clear the meaning of used to with different examples. My first important verb is emerge. emerge बोले तो ऊपर आना, emerge बोले तो ऊपर आना। उसका एग्जांपल देखेंगे, laces of shoes used to emerge after wearing them. laces of shoes used to emerge after wearing them. यानी क्या होता है, जूते के फीते पहनने के बाद ऊपर आते थे, जूते के फीते पहनने के बाद ऊपर आते थे। सेकंड वर्ब है एमिग्रेट। एमिग्रेट बोले तो विदेश प्रवास करना, एमिग्रेट बोले तो विदेश प्रवास करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, आई यूज्ड टू एमिग्रेट एट द एज ऑफ 25. I used to immigrate at the age of 25. मैं 25 साल की उम्र में विदेश प्रवास करता था। मैं 25 साल की उम्र में विदेश प्रवास करता था। मेरा थर्ड नंबर का वर्ब है एम्फसाइज। एम्फसाइज बोले तो जोर देना, एम्फसाइज यानी जोर देना। उसका एग्जांपल देखेंगे, we used to emphasize more marks questions. We used to emphasize more mark questions. यानी क्या होता है, हम अधिक अंक वाले प्रश्नों पर जोर देते थे, हम अधिक अंक वाले प्रश्न पर जोर देते थे। मेरा फोर्थ नंबर का वर्ब है एम्पावर। एम्पावर बोले तो अधिकार देना, एम्पावर बोले तो अधिकार देना। उसका एग्जांपल देखेंगे, आवर एल्डर्स यूज्ड टू एम्पावर आवर ग्रैंडपास। Our elders used to empower our grandpas. यानी हमारे बुजुर्ग हमारे दादा दादी को अधिकार देते थे, हमारे बुजुर्ग हमारे दादा दादी को अधिकार देते थे। मेरा 5 नंबर का वर्ब है इमिट बोले तो बाहर निकलना, इमिट बोले तो बाहर निकालना। उसका एग्जांपल देखेंगे, Fire brigade officers used to emit the trapped persons. Fire brigade officers used to emit the trapped persons. यानी क्या होता है, फायर ब्रिगेड अधिकारी फंसे लोगों को बाहर निकालते थे। फायर ब्रिगेड अधिकारी फंसे लोगों को बाहर निकालते थे। मेरा 6 नंबर का वर्ब है इम्बरस बोले तो झंझट में डालना, इम्बरस बोले तो झंझट में डालना। उसका एग्जांपल देखेंगे, some people used to embarrass me in the village.
Some people used to embarrass me in the village. गांव के कुछ लोग मुझे झंझट में डालते थे। गांव के कुछ लोग मुझे झंझट में डालते थे। मेरा 7 नंबर का वर्ब है इंडेवर। इंडेवर बोले तो प्रयास करना। इंडेवर बोले तो प्रयास करना। एग्जाम्पल देखेंगे। Everyone from our group used to endeavor for government job. Everyone from our group used to endeavor for government job. हमारे ग्रुप के सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते थे। हमारे ग्रुप के सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते थे। 8 नंबर का वर्ब है इनरोल। इनरोल बोले तो सदस्य बनाना। इनरोल बोले तो सदस्य बनाना। Clerk of school used to enroll the students. Clerk of school used to enroll the students. स्कूल का क्लर्क छात्रों को सदस्य बनाता था। स्कूल का क्लर्क छात्रों को सदस्य बनाता था। स्कूल का क्लर्क छात्रों को सदस्य बनाता था। मेरा 9 नंबर का वर्ब है एनिमी। एनिमी बोलना जलना। एनिमी बोले तो जलना। उसका एग्जांपल देखेंगे। Our relatives used to envy in Nagpur. Our relatives used to envy in Nagpur. यानी क्या होता है? हमारे रिश्तेदार नागपुर में जलते थे। हमारे रिश्तेदार नागपुर में जलते थे। मेरा 10th नंबर का वर्ब है एनकरेज। एनकरेज बोले तो प्रोत्साहित करना। एनकरेज बोले तो प्रोत्साहित करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। Public used to encourage the players. Public used to encourage the players. यानी क्या होता है? जनता खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे। जनता खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे। मेरा 11th नंबर का वर्ब है एनक्रोच। एनक्रोच बोले तो अतिक्रमण करना। एनक्रोच बोले तो अतिक्रमण करना। Poor people used to encroach in the empty space in the city. Poor people used to encroach in the empty space in the city. यानी क्या होता है? गरीब लोग शहर में खाली जगह पर अतिक्रमण करते थे। गरीब लोग शहर में खाली जगह पर अतिक्रमण करते थे। आप अगर हमारे चैनल के लिए नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे पूरे वीडियो 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस से देखें। ऐसे वीडियो आपको पहले नहीं मिले होंगे। आपने एक दिन में एक वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखना चाहिए। ऐसे पूरे वीडियो देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हम इंग्लिश में परफेक्ट बनने जा रहे हैं। पहले आपने जो इंग्लिश लर्न किया है वह शॉर्ट नॉलेज था, ऐसे आपको लगने लगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो अपने करीब के लोगों को यह वीडियो भेजें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ।